desktop security. We'll start with the vulnerability. We have already studied in detail vulnerability also, and we'll be again just revising it. Just 2-3 minutes, you can move them. Now, what is vulnerability? It means weaknesses in the system or its design that allows the attacker to access unauthorized data or conduct denial of service attack. हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं. वल्नरेबिलिटीज होते हैं जहाँ पे कुछ लूप होल्स होते हैं और वो लूप होल्स को अटैकर जो है इनकैश करता है. या तो वो अनऑथराइज्ड डाटा जो है जो कि क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है उस डाटा को असेस करने के लिए, या तो उसे असेस करने के लिए करता है, या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करके इट वांट्स टू हार्म द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर टू इट्स कस्टमर्स और क्लाइंट्स. तो दोनों में से कोई एक उसका एजेंडा रहता है, इसलिए ये उस एजेंडे के कॉरेस्पॉन्डिंग ही ये जो है ये वर्क करता है. इट कैन बी फाउंड इन Okay, it can be found in many areas like in your IoT systems as a particular weakness in the system hardware or software. Internet of Things. It's the latest topic in your this technology. Internet of Things. What happens is your all your gadgets in your house, they are going to be connected through your cloud to the internet, and you can control the working of your gadgets via internet. You can if you are moving from your office to your home and you want your AC to be on, so you can use your this IoT technology. If your system or your AC is using that IoT technology, you can switch on your AC as and when you start moving from your office to your house. And if suppose you forgot your this to switch off your any AC, so you moved into for your office on your job, you can directly switch off it from using your internet from your application. So this is your internet IoT technology. अब उसमें भी बिकॉज देर आर सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, हार्डवेयर कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे और सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है दैट विल कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. So the weaknesses in these systems, they are being encashed by the hackers or the attackers to just harm your this IoT technology, or you can say you're using or your this these gadgets जो आप use कर रहे हो उनके लिए. एंड weaknesses in policies and produce user in the system. कोई ना कोई पॉलिसी में अगर वीकनेस है उसका वो मिसयूज कर लेते हैं, या कोई यूसेज जो हो रही है उसके corresponding they can harm your usage of your system so that your electricity consumption increases, or maybe some other harm can be there, your normal working of the that particular gadget that is being harmed. So इसमें vulnerability का main purpose रहता है to harm anyone. So ये हमने already detail में vulnerable part we have already discussed also in our previous slides. Now, what are the classification of your possible intruders? Intruders can be classified into your three categories. One is your individual intruder, other one is your organized group intruders, and other one is your intelligence agency intruders. Individual intruders, as the term is indicating, you alone can be an intruder. That means आप hacker बन सकते हो. एक ये है कि एक group of people together they are acting as an hacker or an attacker. एक है इंटेलिजेंस एजेंसी इंट्रूडर्स, ये वो है जो कि हमारी आर्मी, मिलिट्री या लेट्स से एयरफोर्स, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो उनके साथ मिलके जो हमारी राइवल कंट्रीज हैं उनकी जो अटैक्स के ऊपर या उनके जो एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफ द नीड अराइजेस दे अटैक इट यूजिंग योर साइबर अटैक, और या कोई वो अगर साइबर अटैक करें तो उसको वो कोई भी हार्म करने से बचाती है. सो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के इंट्रूडर्स हैं. तो इसको डिटेल्स में एक एक करके आप पढ़ते हैं. नाउ इंडिविजुअल इंट्रूडर्स आर प्रोफेशनल हैकर्स. वो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल इंट्रूडर्स होते हैं. एंड व्हाट दे डू इज, इज दिस स्क्रीन विजिबल? तो ये नहीं, दिस वन नहीं, इस पे आ रही है, आपके भी आ रही है, विजिबल हो रही है. ओके हाँ वो जूम का आ रहा है कुछ, चलो एनी हाउ.
Individual intruders are professional hackers who will work along and only target with low security systems. Alone एक तो वर्क करते हैं, देयर इज नो वन विद दैट इंडिविजुअल इंट्रूडर. लेट अस से कि आप में से एक बंदा जो है वो हैकिंग टेक्निक्स जानता है और वो इंडिविजुअली किसी एक लो सिक्योरिटी सिस्टम को टारगेट करता है और उसके ऊपर हार्म करने की कोशिश करता है. दैट इज योर इंडिविजुअल इंट्रूडर. अब उसके भी आगे से फीचर्स होते हैं. जो इंडिविजुअल हैकर है दैट टारगेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो साइज है बहुत ज़्यादा छोटा होता है. नॉट एवरी वन एज एन इंडिविजुअल ही और शी एक्ट्स एज एन इंट्रूडर. और बहुत कम लोग हैं जिनका बेंट होता है कि किसी को हार्म करना. इसलिए ये बहुत स्मॉल नंबर है इंडिविजुअल हैकर का. और इनका जो अटैक है वो भी रिलेटिवली जो है वो लोअर इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच प्रोफेशनल इन द हैकिंग टेक्निक्स. बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे उनको हैकिंग टेक्निक्स नहीं आती हैं. जस्ट to check their ability and they try to harm some server just because they want to take some kind of small revenge. So वो उसको कोशिश करते हैं बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता. प्लस उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि वो लो सिक्योरिटी सिस्टम्स को ही टारगेट कर सकते हैं. जो हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनके लिए द टेक्निक्स यूज्ड to attack those systems, it's very much it requires a lot of knowledge, so that might be lacking in an individual intruder. उस केस में वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता. इसलिए अगर हम इनकी इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है उनसे एक इंडिविजुअल ग्रुप इंट्रूडर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो सकता. बिकॉज इंडिविजुअल इंट्रूडर कैन नॉट बी हार्मिंग अ पर्टिकुलर सर्वर इन सच अ वे सो दैट उसका इम्पैक्ट, उसके कारण जो लॉस जो होने बियर करने लगा वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है. Social engineering techniques are most commonly used by individual attackers as they have to obtain the basic information about a target system like an IP address, सिस्टम यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा. अब इसमें क्योंकि इंडिविजुअल इंट्रूडर है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक्स जो है वो तो उसके पास नहीं अवेलेबल है. बट सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स मीन्स वो तो इंडिविजुअल अटैकर के या तो वो नोन हो सकता है या कोई किसी के नोन के थ्रू उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले तो वो रिट्रीव करेगा जिसमें कि उसका आईपी एड्रेस आता है, उसका सिस्टम यूजर नेम आ सकता है, उसका पासवर्ड आ सकता है. देन इट विल ट्राई टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू अटैक एन इंडिविजुअल सर्वर. इसलिए वो इंडिविजुअल इंट्रूडर का जो ज़्यादातर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में ही अपने लिंक्स के थ्रू इवन हिमसेल्फ और हरसेल्फ उसके थ्रू ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसको टारगेट करता है, उसको पहले रिट्रीव करता है और उसको यूज करते हुए इट ट्राइज टू हार्म द सिस्टम. Public and social media websites are the most common places where the general users can be deceived by the hacker. और public और social media websites जो है वो commonly use होते हैं. आप लोगों ने इसके cases भी पढ़े होंगे. Like on Facebook, people they start conveying that I am going out or with my family for so many number of days, and at the back end their house is being targeted by the thieves. तो उस केस में अगर कोई फॉलो था कर रहा है उसे और उसको देखता है कि फेसबुक पे कि ये घर जो है खाली है इस टाइम पे और सारे लोग गए हुए हैं, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसमें कि एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि थीफ माइट बी वन और मे बी लेट्स से 2 और 3 आल्सो. बट वो फेसबुक के ऊपर जो देख रहा है वो माइट बी वन ऑफ देम इज देयर. इसलिए वो अकेला जो है वो एटलीस्ट अपने घर को टारगेट कर सकता है. व्हेन यू राइट ऑन योर सोशल मीडिया वेबसाइट्स दैट यस वी आर मूविंग आउट ऑन these dates and we'll be moving to this place. तो हम वो जो लोग जो इसमें करते हैं तो उसका जो एक कारण है कि इंडिविजुअल इंट्रूडर्स जो है उसका इनकैश कर सकते हैं. So any question on this website you can write on your chat, and if it is clear some of you can write on your chat that it is clear. Not very difficult topic still. If someone has a question they can write on the chat. Anyone having any question over here? Okay, then few of you can write if it is clear. You can write down yes. What is intruder? इंट्रूडर जो हार्म करना चाह रहा है बेटा, यू कैन योरसेल्फ बी एन इंट्रूडर आल्सो. इंट्रूडर होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन who wants to harm someone, वो इंट्रूडर कहलाता है. इंट्रूडर इज द टर्म यूज्ड फॉर दोज प्रोफेशनल हैकर्स जिनका माइंडसेट ये होता है किसी को हार्म करना, वो इंट्रूडर कहलाता है. अगर आप एक एज एन हैकर बन जाओ और आप किसी को हार्म करने की कोशिश करो तो यू विल बी आल्सो एन इंट्रूडर. इंट्रूडर इज अ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव मीनिंग के किसी को हार्म करने के लिए यूज करना. इंट्रूडर होता है जो किसी की इंडिविजुअल प्राइवेसी में
जो है जाके उसमें से या तो डाटा निकालने की कोशिश कर रहा है या उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर हमें पास? ओके, थर्ड पॉइंट रिपीट करना। ओके, social engineering techniques are most commonly used by the individual attackers as they have to obtain basic information. अब सोशल इंजीनियरिंग वर्ड इसलिए यूज कर लिए, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि आप एज अ फ्रेंड बन के किसी के साथ फ्रेंडशिप करो और उसके साथ इतनी फ्रेंडशिप करो कि वो खुद ही आपके साथ इतना ज़्यादा फेथफुल आपको समझे कि आपके साथ वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर ले, या उसके आप सिस्टम तक पहुंच जाओ और अगर वो आपको असेस दे देता तो आप खुद ही उसके आईपी एड्रेसेस और यूजर नेम पासवर्ड उसको असेस कर लो। This is one of the methods. Second is using one of the closest friend or someone of a particular जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उसका कोई क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड, उनको आप टारगेट करो और उनके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो। इसलिए हम इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। या तो ये होता है कि ये कॉमनली इस तरह इंजीनियरिंग इसलिए यूज करते हैं, कई बार आप उसके लिए स्मॉल एप्लीकेशंस भी यूज करते हो जिसको आप कोशिश करते हो कि उसके सिस्टम तक पहुंचा के, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन जो है उसका आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड आपको रिट्रीव करने में हेल्प करे व्हेन ही और शी इज ऑनलाइन। तो ये दोनों चीजों को कॉमनली यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अक्षय, okay, so I'll be moving on to the next slide now. Moreover, operating system used on laptops, computers and mobile phones have common area target by intruder. अब हर एक को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने तरह की लूप होल्स हो सकते हैं। Windows has its own kind of loopholes in some areas, although it has tried to plug a lot of them. Similarly, Android operating system on your mobile phones, it has its own kind of it's you can say your loopholes, and those loopholes can be targeted also. So आपके जो जितने भी इंडिविजुअल इंट्रूडर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आपके कंप्यूटर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, प्लस योर मोबाइल फोन्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसको ही यूज़ करते हैं इंट्रूडर्स टारगेट करने के लिए, आपको जो सर्वर के अंदर जाने के लिए, आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो इंडिविजुअल इंट्रूडर का ज़्यादातर टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इसीलिए ये डेस्कटॉप सिक्योरिटी के अंडर ही आता है, ये जो टॉपिक आता है इंडिविजुअल इंट्रूडर का। द फाइनेंशियल सिचुएशन सच एज बैंक्स आर ऑल्सो द मेजर टारगेट्स बाय इंडिविजुअल अटैकर्स। अब ज़्यादातर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में इंडिविजुअल इंट्रूडर्स हैं वो वाले हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं, दैट मीन्स बैंक्स को करते हैं या बैंक जैसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को करते हैं जो कि ऑनलाइन वर्क करती हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन। तो उनका मेन टारगेट यही रहता है। क्यों? जैसे अब आजकल आ गई है, पेटीएम आ गई है, गूगल पे आ गया, दे इनका टारगेट ही यही रहता है कि इन लोगों, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर टारगेट करे, बिकॉज दे कैरी योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और उनका मेजर पर्पस ये होता है कि अगर वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हैक कर पाए तो वो एक अच्छे लेवल पे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोशिश की जाती है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ऑलरेडी एक जो अच्छे लेवल का चेक लगा हुआ है, वो आगे हम पढ़ेंगे, और वो ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं। सो स्टिल इंडिविजुअल अटैकर्स जो हैं, इंडिविजुअल इंट्रूडर्स जो हैं, वो ज़्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही टारगेट करते हैं। द अटैकर कैन मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, और जो अटैकर है वो इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी को मैनिपुलेट करके और कोशिश करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है वो अटैक करे, एंड समटाइम्स दे आर इवन सक्सेसफुल आल्सो in those cases where they are able to extract some kind of basic information, and by calling the person or by using some other means they try to extract money from the people, like who are your customers of a bank or some other financial institution. उनका main purpose यही रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, जो कि कॉमनली एक बड़ी हिस्ट्री है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन की, जो इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना और उसको इंडिविजुअल हैकर जो है उसको अपनी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। और ज़्यादातर देखा गया कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टील करना कंपैरेटिवली ईजी है when the individual is, or you can say a customer is using that credit card information for buying products or services, तब वो उसको स्टील कर सकता है, और उसको कंपैरेटिवली इजी माना गया, ऑल्दो इट इज स्टिल यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यू कैन से, नॉलेज फॉर यूजिंग दिस और स्टीलिंग दिस क्रेडिट कार्ड information,
फिर भी वो उसको तब टारगेट करते हैं जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता है। सो ये एक इंडिविजुअल इंट्रूडर का वो वाले टारगेट्स हैं जहाँ पे वो ज़्यादा इसको टारगेट करके, जिनके थ्रू हैकर्स जो है, हैकर बन के वो कोशिश करता है कि मैं फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल करूँ, फाइनेंशियली अपने आप को इंक्रीज करूँ और इजी मीन से करूँ, मतलब अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए अटैक करूँ। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? You can write on your chat, or you can write if it is clear. Few of you can write down over there. You can leave if you want. Anyone having any question, or write down clear if it is clear to you people. Few of you can write down the clear message. Okay, fine. Okay, moving on further then. Organized group intruders now. A group of people who are acting as an intruder. Now individual intruder नहीं है, individual intruder के साथ a few more you can say they have joined together to attack a particular server. Not only a single brain is there now, a large number of brains, let's say 4, 5, 6, 10, any number is there, and they are trying to harm a particular server. So a group of intruders कहलाएंगे. Organized इसलिए कहते हैं because they are professional hackers. और उसमें उनका रोल ये रहता है कि इंडिविजुअली दे डिवाइड वर्क अमंग themselves and try to first get the basic informations and other things from the about the server, and then they try to attack it together. Now, as the name suggests, the organized group of intruder is a combination of multiple intruders, a combination of a large number of human beings who are good at hacking techniques, persons who are good at your hacking techniques. And these groups are becoming more familiar with the ongoing communication and IoT technology. और इनमें मेजर ये रहता है, इनमें वो लोग होते हैं जो कि आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी की भी पूरी नॉलेज रखते हैं और IoT टेक्नोलॉजी की भी पूरी नॉलेज रखते हैं, सो दैट दे नो द लूप होल्स इन द ऑनगोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज द IoT टेक्नोलॉजी. उसमें कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ से टारगेट किया जा सकता है, कौन सी वल्नरेबिलिटीज को यूज करके हम जो है वो किसी भी सर्वर को टारगेट कर सकते हैं, वो इनको नॉलेज होती है. इन एडिशन दे बिकम मोर कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. और साथ साथ वो ये भी करते हैं कि जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है उनको भी वो अच्छी तरह चलाना भी जानते हैं, उनको यूज़ करना भी जानते हैं, उनको उनके जो वल्नरेबल पार्ट है वो भी जानते हैं और उनके थ्रू वो आगे से अटैक के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं. These groups can be more aware of opportunity offered by the infrastructure routing information networks. और इन ग्रुप में ऐसे के लोग हैं जिनको ये पता होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो राउटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं उनमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक पर्टिकुलर अटैक करने की. That means they know when they are able to use the routing information network to attack a particular server. ये नहीं है कि unplanned तरीके से जब मर्जी अटैक कर देते हैं, वो पहले तो उसको स्टडी करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम होगा जिस टाइम पे जो है इस पर्टिकुलर राउटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर हम अपना टारगेट कर सकते हैं किसी को भी अटैक करना. और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका उसका जो वो आपका अटैक है उसको वो कैप्चर करने के लिए उसको डिफिकल्टी होगी. इसका मतलब उनको वो टाइम पीरियड भी पता है, उनको ये भी पता है कि कब यूज़ करना है और कितने इम्पैक्ट से करना है वो भी इनको पता है. So the motivators of these groups are quite diverse. Their targets typically include particular organizations targeting the national information infrastructure. और ज़्यादातर इनकी जो ग्रुप्स हैं वो डाइवर्स इसलिए कहते हैं कि हर एक जो मेंबर होता है इसमें इंट्रूडर्स में ग्रुप में वो अपनी अपनी चीज़ों में एक तरह की नॉलेज का एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है. इसलिए जब ये टारगेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन उनको टारगेट करते हैं जिनसे इनको या तो डाटा एक्सेस मिलता है या उनके जो नॉर्मल सर्विसेज है उनको इफेक्ट करना चाहते हैं. कंपटीटर से पैसा लिया होता है या अपने आप को किसी को किसी अपने नोन को कुछ बेनिफिट देने के लिए ये उनको टारगेट करते हैं. प्लस नेशनल इन्फॉर्मेशन मीन्स किसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये टारगेट करते हैं, सो दैट वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट कर सके एंड दे कैन सेल इट टू देयर दीज जो उनके
एडवर्सरीज होते हैं। जैसे अगर इंडिया का है तो वो इंडिया को सेल करने के लिए पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, पाकिस्तान को लेने के लिए इंडिया की इन्फॉर्मेशन। दीज आर द कंट्रीज जो मतलब आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, तो आपस में ये लोग इस तरह की जो इंट्रूडर्स हैं वो इन लोगों को कंट्रीज को सेल कर सकते हैं इफ दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट सम काइंड ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर websites or their servers. These groups also involve selling of personal information such as financial data, booking translations, etc. And these groups are very capable in terms of financial funding and resources. अब इनमें ये भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फाइनेंशियल डाटा जो है उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो खुद नहीं उसको यूज करते, उसको सेल करते हैं लोगों को, ताकि अगर वो उसको यूज कर सकते हैं तो करें। और वो अपना जो नॉलेज को सिर्फ फाइनेंशियल डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको सेल करते हैं उन लोगों को जो कि फाइनेंशियल डाटा को मिस यूज करना चाहते हैं। अगेन बुकिंग ट्रांसलेशन होती हैं, जैसे कि अगर हमारे हम आपने कोई चीज़ की बुकिंग किया और उसको आपने किसी और लैंग्वेज में यूज़ किया, उसकी ट्रांसलेट करके किसी और को एक डिफरेंट फॉर्म में दे देना ताकि उसका वो मिस यूज़ कर पाए, उसको या तो वो मॉडिफाई कर पाए या वो उसको कंफ्यूज कर पाए जिसने वो किया है, ताकि वो जो बुकिंग इन्फॉर्मेशन है वो कहीं और जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो उससे फाइनेंस जो है रेज किया जा सके, इकोनॉमिकली उसको बेनिफिट मिल सके। तो पहली स्लाइड क्लियर है? अगर it is clear, then I'll move further. Write down on your chat those. Few of you can write your clear message, or you can write if there is any question. Is it clear? Okay, then I'll move further. इंटेलिजेंस एजेंसी इंट्रूडर्स। नाउ ये हमने थर्ड कैटेगरी ऑफ इंट्रूडर्स पढ़ा था, इंटेलिजेंस एजेंसी इंट्रूडर्स। एंड यू नो इट, दे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड वो एजेंसीज जो कि अपनी जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं जिनके साथ दुश्मनी होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता, उनके जो अटैक्स हैं उनको रोकना और उनके ऊपर अटैक करना, ये दोनों काम करती है। So intelligence agency from different countries are persistent in their effort to probe the military system of other countries for specific purpose. To accomplish their objective, the agencies require a large number of experts. अब ज़्यादातर क्या होता है, जो यहाँ की इंडिया की जो आर्मी है या इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये चाइना की, पाकिस्तान की और भी ऐसे की कंट्रीज जिनसे इनको खतरा हो, उनके जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर ये भी टारगेट करते हैं, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सर्वर्स। हालांकि ये ट्राई करते हैं, ग्रुप ऑफ इंट्रूडर्स भी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, एंड दे आर हैविंग अ बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट टू डू इट। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरी में, हैकिंग की टेक्निक्स में प्लस अदर टेक्निक्स में, सो दैट वो सर्वर के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि किस तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी का, किस तरह के उनका सिस्टम चलता है, कौन कौन से वेपन्स हैं उनके पास, कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, डेवलपमेंट एंटिटीज। अब क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसमें एक तो एक्सपर्ट्स ज़्यादा हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्लस इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेटेस्ट रहता है, इनके पास डेवलपमेंट एंटिटीज भी ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हैं ये लोग। Besides the financial and human resources, such as agencies have organized structure and suffocated resources, sufficient resources to achieve their goals. Sorry, it is sufficient resources. अब उसमें ना सिर्फ इनके पास इनफ नंबर ऑफ फाइनेंस होता है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी, लोग भी एक्सपर्ट इनफ नंबर होता है, प्लस एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है जिसके थ्रू ये टारगेट करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए। And this state of agencies are the biggest threat to the network and monitoring the approaches to save their information against different threats. एक तो ये biggest threat होते हैं नेटवर्क के ऊपर, प्लस दे आर ऑलवेज मॉनिटरिंग द नेटवर्क सो दैट जो उनके ऊपर अटैक हो रहा है वो उसको भी कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करें और उस अटैक को रोकने के लिए वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, ये उसके लिए भी रेडी रहते हैं। इसलिए ये थ्रेट भी है उन लोगों के लिए जिनको ये टारगेट करते हैं उनके नेटवर्क को, और प्लस ये इवन एज अ डिफेंसिव मेजर ये उनके अटैक्स को रोकने के लिए भी काम आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंट्रूडर्स कहलाते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? So if it is clear, you can write down on the message on your chat.
Any question regarding it? Okay, then I'll move further. There is no question. No, general desktop security guidelines, because basically we are concerned with the desktop security. So there are certain general guidelines that should be adopted on your laptop or a computer so that you are able to secure your system from any kind of attack. So some different guidelines are, number one, maintain up to date and properly configured software. एक तो हम लोग यहाँ पे pirated कई बार use कर लेते हैं, but otherwise you should always have a this licensed version of your this operating system also. Plus it should be up to date. That means whenever there is any kind of this patch, or you can say any new this update, you should continuously update it, और up to date आपका जो आज के टाइम के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो चेक कर लेता है, और सॉफ्टवेयर को भी कॉन्फ़िगर जो है वो प्रॉपर किया जाए, उसके सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को भी प्रॉपरली कर लिया जाए. Don't open any email attachment unless you know the sender and know that it was intentionally sent to you. एक तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी भी ईमेल को, उसकी अटैचमेंट को तब तक ओपन मत करो जब तक आपको ये पता हो कि ये सेंडर कौन है, या उसको ये भी पता हो कि उसने इंटेंशनली ये मेरे को मेल सेंड की है तो मैं उसको जानता हूँ. Because in the attachment there can be anything that can harm your system also. Use complex passwords and never write down on your passwords and never share it with anyone. अब क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली कि पासवर्ड जो है एक तो सिंपल रख लेते हैं, और अगर कम्प्लेक्स रखते भी हैं तो कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर में ही किसी वर्ड फाइल में, किसी भी उसमें फाइल में जाके सेव कर लेते हैं, और उसका फाइल का नाम भी पासवर्ड रख देते हैं. अब whenever your system is being targeted, it is they try to get your basic information में ये passwords भी आते हैं. So whenever you use your passwords, number one thing is it should be complex. Complex means it should have your lowercase characters, it should have a higher case character, it should have your digits, it should have a few of your this any of your this special character also, so that it's a combination of that. और अगर ये combination है तो it is very difficult for any intruder to at least know your password. प्लस उस पासवर्ड को कहीं लिखना नहीं है, अपने कहीं पे टाइप करके नहीं रखना, सो दैट इट इज नॉट बीइंग हैक्ड बाय समवन. प्लस इसको शेयर नहीं करना किसी से. अगर शेयर कर लिया है तो वो थोड़ी देर के लिए यूज करे, ठीक है, इट्स फाइन, साथ में उसको चेंज करना. इफ यू शेयर एनी फाइल फ्रॉम योर मशीन, बी सर्टेन दैट एक्सेस इज प्रोटेक्टेड विद अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड. और अगर आप कोई फाइल शेयर करते हो किसी के साथ तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको नॉर्मली शेयर ना किया जाए, उसके साथ पासवर्ड लगा के और उसको शेयर किया जाए, और वो पासवर्ड अकेले इंटेंडेड पर्सन के साथ शेयर किया जाए कि इसका पासवर्ड ये है, विद थ्रू सम अदर मीन, ताकि वो जो फाइल है ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ इट इज बीइंग हैक्ड आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड, एंड दीज आर दोज फाइल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, उन फाइल्स के लिए ऐसी शेयरिंग जो है वो नॉर्मल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए. उसके अंदर वो उसको असेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाना चाहिए, और दैट टू ए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड. देन कीप बैकअप कॉपीज ऑफ एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. और अगर कोई ऐसे की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम पे पड़े हैं, उनकी बैकअप हमेशा रखो. उनकी जो बैकअप है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पे थी और सिस्टम आपका खराब हो गया या एनीथिंग एल्स हैज हैपेंड. सो उस केस में ये इशू रहेगा. So any question regarding your desktop security guidelines of this? ये कुछ एक है, आगे भी हैं आगे. यहाँ तक क्वेश्चन है तो you can write down on your chat. I think so these are simple and everyone knows it. Still, if anyone has a question, you can write down. Okay. Now, moving on to this, we have already studied it, so I'll not be repeating it. They are again your attacks that are being carried out on your desktop computers. हमने पढ़ा हुआ denial of service attack. I'll not take it up. We have already discussed it in detail. We have discussed this direct access attack also. We have discussed eavesdropping attacks, spoofing attack, tampering attack, phishing attack. So we have already discussed these, so I'll not be taking up this. So I'll be taking up now the firewalls part. If any question regarding it, you can ask me on your chat. We can discuss it. Otherwise, we'll take up this now firewalls part. And plus one thing more, that regarding your security part, okay, we'll have a poll also before we start the firewall. I'll give you one poll and you try to attempt it. I'm launching poll and it will take 1 minute for you to complete it.
Okay, your poll has been started. Be quick. Half time is already over. So almost time is over, and hardly 22 people have attempted from 33. Okay. So rest they have just joined the class, not attending it. Okay, I'm ending the poll. I'm sharing the result with you people. Just see. आई थिंक सो इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट वी हैड जस्ट डिस्कस्ड. ये तीन तरह की कैटेगरीज हमने अभी पढ़ी हैं, और जो लोग नहीं सुन रहे थे उन्होंने अभी भी आंसर गलत दिया है. Individual integers, some have given, two of the people have given this, and three have given organized group integers, two have even given your intelligence agency integers, and those who have listened, they know it that it is all the three, they are being the classification of your integers. Okay. Anyhow, we'll move on to the firewalls part. Firewall. We have heard about it many times. There are firewalls. We are even told that sometimes on your operating system, the firewall settings have to be changed or they have to be set so that your protection should be high. So this term is common when you are into your this environment where computer is basically used. उसमें एक firewall commonly term use की जाती है. Now, a firewall is a system designed to prevent. I think so. Now it's this PPT is visible to all. Just tell me. There is the CR of the class. This firewall PPT is visible. Okay, Sahil, fine. Okay, fine. Now, firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. बिकॉज आपका नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है और उसमें आप इसको एक कॉमनली यूज्ड हम कहते हैं कि कुछ एक मिनिमम पार्ट की सिक्योरिटी उसमें प्रोवाइड कर पाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी आर यूजिंग फायरवॉल सिक्योरिटी. एंड फायरवॉल सिक्योरिटी वुड इज कॉल्ड, जो कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम करती है. एक ऐसे का एक्सेस जो कि नॉर्मली एक अटैकर, इंडिविजुअल इंट्रूडर भी हो सकता है जो कि आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने का मिनिमम पार्ट जो है फायरवॉल करती है. You can implement a firewall in either a hardware or a software form or a combination of both. अब इसमें firewall जो है वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, या हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं. इसलिए ऐसा नहीं है कि फायरवॉल इज ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर पार्ट ओनली. देयर आर सम हार्डवेयर also available that are acting as a firewall to your system. और उस हार्डवेयर के थ्रू जब आपका जो डाटा या एनी जो कम्युनिकेशन जो है वो उस हार्डवेयर के थ्रू आती है, तो वो हार्डवेयर भी एक चेक रखता है, एक फायरवॉल की तरह एक्ट करता है और आपके ऊपर कोई भी अटैक होने से बचाता है. सो फायरवॉल्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम accessing private networks connected to the internet, especially intranets. Beta, I think so. Ritik Arora is there. He's trying to join again and again. I'm giving him permissions. So CR of the class just convey him के I don't know, it might be his problem. उसके कोई network में issue लग रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहा है join करने के, and I am giving him permission to join it. I am admitting him. So there is some issue at his end. Firewalls prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet, especially intranets. और फायरवॉल का मेन रोल यही रहता है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं, जैसे हम भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो उसमें उनमें से कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड का मतलब है आप लोग वल्नरेबल हो फॉर अटैक्स. तो वल्नरेबल मीन्स यू आर ओपन फॉर योर
कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। इसलिए उनके ऊपर जो नॉर्मल अटैक्स हो सकते हैं वो फायरवॉल्स उसको रोकने में हेल्प करता है। इंट्रानेट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला नेटवर्क है। अब इंटरनेट भी हो सकता है कि उसको उसके थ्रू भी जो कोई अटैक कर रहा हो तो वो भी फायरवॉल उसको जो है वो एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। बेटा ऋतिक अरोड़ा की कुछ इशू है, सीआर को कन्वे करो, बिकॉज उसका ऑलरेडी भी पहला भी आ रहा है। आई एम अगेन एडमिटिंग हिम इज एट हिज हैंड देयर इज सम इशू। Okay, firewalls further. One of the major challenges that the companies face when trying to secure their sensitive data is finding the right tools for the job. अब ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि फायरवॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जब भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस एक फायरवॉल लगाना चाहती है, इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है टू डिसाइड अ टूल दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम्स। उनको सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टूल, एक एप्लीकेशन जो है वो कौन सी यूज करनी चाहिए, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा ऐसा फायरवॉल है जो कि बेस्ट रहेगा उनके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है फाइंड आउट करने के लिए। So even for a common tool such as a firewall, many businesses might not have a clear idea of how to find the right firewall for their needs. उनकी अपनी needs कैसी है, उनको configure कैसे करना है, और इनकी नेसेसिटी क्या है। ये तीनों चीजें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। इसलिए सबसे पहला चैलेंज ये रहता है कि एक तो ये है कि फायरवॉल की नीड क्या है, सेकंड ये है कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए ताकि वो एक एनफ नंबर ऑफ एनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए उनके सिस्टम को, और थर्ड इज कि इसकी वाकई में नेसेसिटी इतनी ज़्यादा है भी है या नहीं है, वो भी उनको नहीं पता है कि फायरवॉल जो है कितना रिक्वायर्ड है। The first step in finding the right firewalls is to protect your company's data, is to know what kind of firewalls there are. सबसे पहला तो ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल फायरवॉल्स कौन कौन सी हैं, कौन सी ऐसे फायरवॉल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, टाइप्स अवेलेबल हैं, और आपके अपने इंफॉर्मेशन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फायरवॉल कौन सी हो सकती है। वो सबसे पहली जो आपका जो रोल होना चाहिए फाइंड आउट करना, या स्टेप होना चाहिए कि पहले तो ये फाइंड आउट करें कितने तरह की फायरवॉल्स अवेलेबल हैं और मेरे उस पे सिस्टम पे कौन सी आगे से रिक्वायर्ड होगी। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? यू कैन राइट डाउन ऑन योर चैट। Any question? If it is clear, you can write down yes. Okay. I'll move further. Fine. Few of you should respond in the chat. Now, moving further, बिकॉज हमारा लास्ट फर्स्ट स्टेप ही यही है कि पहले तो ये फाइंड आउट करना कि कितने तरह के फायरवॉल्स हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ योर फायरवॉल्स। अगेन ऋतिक अरोड़ा, आई डोंट नो देयर इज सम इशू विद हिम और हिज Zoom application because he's trying to connect again and again. There is no option, I think so. There are 5 different types of firewall architectures, and broadly speaking, what are they called? Number 1 is packet filtering firewall. Number 2 is stateful inspecting firewalls. Number 3 is circuit level gateways. Number 4 is application level gateways, जिसको हम proxy firewall भी कह सकते हैं। ये आपने commonly term सुनी भी होगी और use भी की होगी। Proxy firewall is the most common over here. Next gen firewalls, next generation firewalls, ये 5 different types of firewall architecture available हैं, और इनके ऊपर बेस्ड आगे से हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि एक एक कौन सी है, इसके हर एक में रोल क्या है, फायरवॉल का आर्किटेक्चर पैकेट फिल्टरिंग में क्या फायरवॉल करती है और क्या उसके एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। सिमिलरली फॉर योर सर्किट लेवल स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सर्किट लेवल सॉरी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सबसे पहला वाला फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। As the term is indicating, as it is the most basic and oldest type of firewall architecture. सबसे बेसिक थी, सबसे पुरानी फायरवॉल आर्किटेक्चर है, जो सबसे पहले जब सिक्योरिटी की नीड अराइज की थी तो सबसे पहले पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ही बनाई गई थी।
पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स बेसिकली क्रिएट अ चेक पॉइंट एट ट्रैफिक राउटर और स्विच। अब इसमें क्लियर कट है, जो आप हार्डवेयर यूज करते हैं राउटर या स्विच, वहां पे एक चेक पॉइंट क्रिएट करती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। और वो चेक पॉइंट क्या करता है? द फायरवॉल परफॉर्म्स अ सिंपल चेक ऑफ द डाटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द राउटर। जितने भी पैकेट्स यू नो इट, आपने टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पढ़ा है। पैकेट मींस एक ही मैसेज के जो आगे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो जितने डाटा पैकेट्स आ रहे हैं राउटर के थ्रू वो रिसीव हो रहे हैं, उनको वो इंस्पेक्ट करती है। और वो इंस्पेक्शन में क्या करती है? चेक करती है इंस्पेक्टिंग इंफॉर्मेशन सच एज डेस्टिनेशन एंड ओरिजिनेशन आईपी एड्रेस। एक तो उसका जहां से वो आईपी एड्रेस ओरिजिनेट हुआ है, जिसके जिसके थ्रू वो पैकेट सेंड किया गया, उसको चेक करती है। प्लस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करती है, क्या वो इंटेंडेड यूजर मैं ही हूँ जो जिसके थ्रू सेंड करना है, राउटर है ना, इसलिए वो ये चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे इस पर्टिकुलर राउटर या स्विच के थ्रू आगे से पास ऑन करने के लिए ये एक वैलिड एड्रेस है या नहीं है। आईपी एड्रेस वो भी चेक करती है, डेस्टिनेशन एंड ओरिजिनेटर आईपी एड्रेस। देन पैकेट टाइप, उसकी टाइप क्या है, पोर्ट नंबर कौन सा है उसने जिसके थ्रू वो जो है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऊपर रीडायरेक्टेड है, या सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन जो कि एक पैकेट को इंस्पेक्ट करने के लिए जरूरत है, वो उस इन चीजों को इंस्पेक्ट करती है। और उसके कंटेंट को बिल्कुल चेक नहीं करती। इसका इंपॉर्टेंट ये है, ये चीजें तो चेक करती है, बट जो उसके अंदर पैकेट के अंदर है, चाहे वो वायरस ही हो, चाहे वो कोई ऐसे का मालवेयर हो, उसको वो चेक नहीं करती। इसलिए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है वो सिंपलेस्ट टाइप का फायरवॉल, और इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। इतना चेक कर लेती है कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो भी ठीक होना चाहिए, जो ओरिजिनेटिंग आईपी एड्रेस है वो भी ठीक होना चाहिए, प्लस उसके अलावा जो कि उसके टाइप है पैकेट की वो भी ठीक हो, पोर्ट नंबर क्या है वो भी ठीक हो। ये चीजें वो चेक करके, और कुछ और थोड़ी सी सर्विस लेवल इंफॉर्मेशन है उसको चेक करके, और वो पैकेट को उस राउटर से पास ऑन करके आगे को सेंड कर देती है। बट वो ये नहीं चेक करती कि पैकेट के अंदर कंटेंट क्या है, एक्चुअल में डाटा क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। सो इफ द इंफॉर्मेशन पैकेट डजंट पास द इंस्पेक्शन, इट इज ड्रॉप्ड। और अगर इंफॉर्मेशन पैकेट जो है वो इंस्पेक्शन को पास नहीं करता, तो उस पैकेट को ही ड्रॉप कर दिया जाता है, मीन्स उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। The good thing about these firewalls is that they aren't very resource intensive। ये important इसमें एक है कि ये जो resource intensive means के ज़्यादा जो है एक सिस्टम जिसके ऊपर ये जिसके थ्रू ये फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे राउटर और स्विच, तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड नहीं लेती, प्रोसेसिंग का के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं ऑक्यूपाई करती। दिस मीन्स दैट दे डोंट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बहुत थोड़े से रिसोर्सेज लेती है, इसलिए सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट कोई नहीं आता। और ये relatively सिंपल है, सिंपल सी फायरवॉल है। However, they are also relatively easy to bypass compared to firewalls with more robust inspection capability। क्योंकि ये एक तो सबसे पहली फायरवॉल थी, प्लस ये बहुत ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको बाईपास करना इजी है। जो हैकर अटैकर है उसको ये पता है कि अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल लगी होगी तो उसको कैसे बाईपास करना है, इजी है। और इसमें बहुत ज़्यादा रोबस्ट इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी मीन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करता, इसलिए इतनी ज़्यादा चीज़ें ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें देख के अगर उसको लगता है ये ठीक है तो उस पैकेट को पास ऑन कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट योर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स। एनीथिंग, any question regarding it now? Packet filtering firewalls, any question? If it is clear, we'll move further. Write on your chat. Okay, then I'll move further. Before moving further, I'll be giving you now one more poll. So I'm launching your second poll. You have your 1 minute to attempt it.
Okay, last 5 seconds. So I'll be sharing your result again. So I think so I've discussed in the previous slide only. So firewall जो है, it is having both your hardware as well as software. It can be your hardware as well as software. So both is the answer. And still some have attempted it wrong. So it's based on your lectures only. इसमें बहुत ज़्यादा difficult question नहीं होते, but we want to know that if you are listening. So still some are not listening to the lectures. Moving on to your next aspect, circuit level gateways. So if there is no question on your packet level packet filtering firewall, then I'll move on to your circuit level gateway. Any question regarding it, you can write on your chat. Otherwise, I am moving to your circuit level gateway. As another simplistic firewall type that is meant to quickly and easily approve or deny your traffic without consuming significant computer resources. Again, इसमें एक important factor similar आ रहा है जो कि पैकेट फिल्टरिंग में भी था कि ये significant computer resources नहीं कर रहा है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है और ये भी simple है और क्विकली और इजीली इसको जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको अप्रूव या डिनाई इमीडिएटली कर देता है। इसमें ये कैपेबिलिटी है कि जो भी चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहा है, जो भी आपका जो ट्रैफिक है उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, उसको इमीडिएटली या तो अप्रूवल मिल जाता है या उसको डिनाई कर देता है। सो सर्किट लेवल गेटवेज वर्क बाय वेरीफाइंग the TCP handshake. अब ये TCP handshake, I'm not going to give it in detail. You have already studied in your computer networks also TCP IP protocols. So TCP handshake जो है उसको ये चेक करता है. The TCP handshake, this TCP handshake check is designed to make sure that the session, the packet is from its legitimate. बेसिकली ये TCP हैंडशेक ये चेक करता है कि जहां से ये पैकेट आया है वो एक लीगल पार्ट है, वो लेजिटिमेट मींस एक्चुअल में उसको हम जानते हैं या ये रिसोर्स जो है जहां से भी आ रहा है ये एक नॉन रिसोर्स है। लेजिटिमेट मींस सिर्फ ये फाइंड आउट करना कि ये एक एग्जिस्टेंस इसकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी नॉन एग्जिस्टिंग चीज से आ रहा है या कोई हवा से क्रिएट किया गया है। तो इसलिए ये जो ये इंश्योर कर देता है, टीसीपी हैंडशेक चेक कर लेता है कि जो भी सेशन के अंदर पैकेट आ रहा है वो पैकेट जो है किसी लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। While extremely resource efficient, these firewalls do not check the packet itself. ये efficient तो है ही है पर ये पैकेट को ये भी नहीं चेक कर रहे। So if a packet had malware, again the content में अगर malware भी है, उसका जो टीसीपी हैंडशेक जो है वो अगर राइट है तो ये इस पर्टिकुलर पैकेट को अपने से पास थ्रू करा देगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक एडिशन पार्ट क्या हुआ कि ये टीसीपी हैंडशेक चेक करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ द टीसीपी हैंडशेक इज राइट एंड द पैकेट इज स्टिल हैविंग एनी मालवेयर, कि उसमें मालवेयर अवेलेबल भी हो, तब भी उस पैकेट को वो पास थ्रू करवा देगा। सो दिस इज वाई सर्किट लेवल गेटवे भी जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये भी बहुत ज्यादा जो है प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता किसी भी बिजनेस को, क्योंकि ये कंटेंट को चेक नहीं कर रहा। इसने सिर्फ क्या किया कि अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसमें पहले वाले में चेक हो रही थी पैकेट फिल्टरिंग में, यहाँ पे इसने एक अलग से ले लिया मेथड कि ये टीसीपी हैंडशेक चेक करेगा जिससे ये श्योर हो जाए कि एक लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है, एक नॉन सोर्स से आ रहा है, जो कि एक राउटर या स्विच जिसको जिसको आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसलिए वो उस पैकेट के कंटेंट को चेक करे बगैर उसको आगे पास थ्रू करवा देगा। इज इट क्लियर अप टिल हियर सर्किट लेवल में? अगर क्वेश्चन है तो कोई बताओ। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? Okay, then I'll move on to your circuit level gateway. Oh, sorry, stateful inspection gateway, this firewall. These firewalls combine both the packet inspection technology and TCP handshake verification to create a level of protection greater than either of the previous two architectures could provide alone. अब ये क्या कर रहा है, ये वाला जो stateful inspection firewall है, ये पिछली दो टेक्नोलॉजीज दोनों को कंबाइन कर रहा है। अब जब वो दोनों को कंबाइन कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से एक बेटर जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हाँ जी परशुराम, कौन सा रिपीट करना है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, अभी तो फर्स्ट ही पे ही हूं मैं। I'll repeat it, okay? This one only.
पैकेट अभी तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ बेटा परशुराम। ये पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो कि हमने पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्निक्स यूज की थी, जिसमें कि हमने इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की थी एक पैकेट के बारे में, वो प्लस इन योर सर्किट लेवल गेटवे, उस केस में हमने उसका टीसीपी हैंडशेक चेक किया कि वो राइट या लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है। ये दोनों को कंबाइन करके अब जो टेक्नोलॉजी बनाई वो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल बना दी। इसलिए ये दोनों आर्किटेक्चर से कंपैरेटिवली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज को इकट्ठी यूज कर रही है। दिस इज अबाउट योर फर्स्ट पॉइंट। द स्टेटफुल इंस्पेक्शन इज ऑल्सो नोन एज योर डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग। और जब स्टेटफुल इंस्पेक्शन कहते हैं तो उस केस में ये डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी कहते हैं इसे, इसका अनदर नेम इज देयर। इट इज अ फायरवॉल टेक्नोलॉजी दैट मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। सबसे पहले तो ये करती है, मॉनिटर क्या कर रही है, जिसके एक्टिव कनेक्शंस कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर राउटर या स्विच के ऊपर, and then uses this information to determine which network packets to allow through the firewall। फिर उसी इंफॉर्मेशन को ये यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क, कौन से नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स हैं जिनको ये पर्टिकुलर फायरवॉल अलाउ करेगी अपने से गो थ्रू होने में, उससे पास ऑन करने के लिए। ये उस इंफॉर्मेशन से ही एक डिसीजन हो जाता है। So in a firewall that uses stateful inspection, the network administrator can set the parameters to meet the specific needs। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के केस में कुछ एक पैरामीटर सेट कर सकता है, ताकि उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। नेटवर्क पैकेट्स कौन कौन से हैं जिनको वो अपने गो थ्रू करने देगी या वहां से पास ऑन करने देगी, उसको वो कंट्रोल कर सकती है थ्रू थ्रू दीज सेटिंग्स और इन द पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स को सेट करके वो एक स्पेसिफिक नीड क्रिएट कर सकती है जिसके थ्रू कुछ पैकेट्स पास ऑन कर सके। In a typical network, ports are closed unless an incoming packet requests the connection to a specific port। और ज्यादातर क्या होता है, एक टिपिकल नेटवर्क में क्या हो रहा है, पोर्ट्स ज्यादातर क्लोज होते हैं और जितने भी इनकमिंग पैकेट्स हैं वो हर बारी एक स्पेसिफिक पोर्ट की रिक्वेस्ट देंगे और उस रिक्वेस्ट के ऊपर ये वाला फायरवॉल उस पोर्ट को ओपन करेगा और उसको पास ऑन करने का। इससे क्या हो रहा है कि जो ये ओपन नेटवर्क नहीं हुआ, एक तो ये हो गया कि पैकेट को, जो भी इंटेंडेड पैकेट होगा इसका मतलब उसको ये भी पता होगा किस पोर्ट से की रिक्वेस्ट देनी है ताकि उसके थ्रू मेरे को पास ऑन करना है। इसलिए वो एक अनदर एक फायरवॉल में एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर ऐड अप हो गया कि पोर्ट जो है वो ओपन नहीं है, जो भी पैकेट आ रहा है उसको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि किस पोर्ट के ऊपर उसको स्पेसिफिक पोर्ट के थ्रू पास ऑन करना है या यूज करना है, और फिर उसके लिए वो पोर्ट ओपन किया जाएगा। अगर वो पोर्ट ओपन होगा तो नेचुरली फिल्टरिंग हो रही है ना, हर एक पैकेट को पता है कि कौन से पोर्ट पे जाना है। इसलिए कोई भी इंट्रूडर जिसको ये नहीं पता कि कौन सा पोर्ट यूज होगा, इसका मतलब वो पैकेट जो है वो उससे पास ऑन नहीं करेगा। इसलिए कंपैरेटिवली फायरवॉल बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। सो दिस प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पोर्ट स्कैनिंग, अ वेल नोन हैकिंग टेक्निक। अब ये जो हैकिंग टेक्निक है कॉमनली यूज होती है पोर्ट स्कैनिंग, इसलिए ये उसको प्रिवेंट करती है। Stateful inspection is a type of packet filtering that helps to control how data packets move through a firewall। ये एक तरह की पैकेट फिल्टरिंग की टेक्निक ही है, बट इसमें एक एडिशनल पार्ट ये आ रहा है कि ये पोर्ट को भी यूज कर रही है, पोर्ट को ओपन नहीं रखती है, सिर्फ और सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पैकेट पोर्ट को ओपन करती है। इसलिए जो पोर्ट स्कैनिंग है, जो कि कॉमनली एक हैकिंग टेक्निक यूज की जाती है, उसको ये प्रिवेंट करती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है स्टेटफुल का? अभी आगे इसको और इलेबोरेट करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बताओ, 2 पॉइंट्स इसके क्लियर है? यू कैन राइट डाउन ऑन योर चैट। Okay, I'll move on to the third point now. Okay, Kirandeep, I'll repeat the second point. Wait. जो डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग है, एक तो इसका सेकंड नेम है स्टेटफुल इंस्पेक्शन का, जो कि इसको नया नाम दिया गया, प्लस इसमें जो टेक्निक में क्या किया गया वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या एडिशनल पार्ट हुआ है। एक तो ये है, सबसे पहले क्या करता है कि जो फायरवॉल है वो ये चेक करता है कि कितने एक्टिव कनेक्शंस हैं, वो चेक करता है। प्लस उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये इंश्योर करता है कि कौन कौन से नेटवर्क पैकेट्स को वो अपने इस फायरवॉल के थ्रू जाने देगा। तो ये पहले ही वो एक व्यू बना लेता है कि इतने एक्टिव कनेक्शंस हैं और इनमें से जो नेटवर्क पैकेट्स आएंगे, कौन कौन से नेटवर्क पैकेट्स को अपने थ्रू जाने देगा। अब आगे क्या कर रहा है,
इसी क्योंकि ये इस पैकेट टेक्निक में, सॉरी स्टेटफुल इंस्पेक्शन टेक्निक में जो हमने टूल यूज किया है, जो कि हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, उसमें ना कुछ एक पैरामीटर्स की वैल्यूज को सेट किया जा सकता है। इसलिए वो पैरामीटर्स जो है वो हेल्प करते हैं एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में एक पर्टिकुलर सिस्टम में। सो पैरामीटर्स कौन सेट करेगा? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेट करेगा। वो क्या करता है, कुछ एक पैरामीटर्स को सेट कर देता है और उन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड हर नेटवर्क पैकेट को वो पैरामीटर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और फिर ही वो उसके थ्रू पास ऑन कर पाएंगे। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। प्लस उसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज वो ये कर रहा है कि वो नॉर्मली पोर्ट्स जो कि ओपन होते हैं उनको क्लोज कर देता है, और जितने भी नेटवर्क में पैकेट्स आ रहे हैं वो हर एक पैकेट जो है अल्टीमेटली उस पोर्ट की रिक्वेस्ट देगा और फिर उस पोर्ट को ओपन किया जाएगा और उसको अलाउ किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि हर वक्त पोर्ट ओपन नहीं है। इसका मतलब कोई भी नेटवर्क के थ्रू जो उन्होंने पहली कंडीशंस की हैं, कोई एक्टिव कनेक्शंस चेक किए, नेटवर्क पैकेट्स आ रहे हैं, तो वो अगर पोर्ट ओपन होता है तो उसके थ्रू अगर वो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो कि आपने स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर पैरामीटर सेट किए हैं, तो वो सभी को पास ऑन करने देगा। अब उन्होंने एक और एडिशनल फीचर लगा दिया कि पैकेट को ये भी बताना पड़ेगा कि उसको कौन सा पोर्ट यूज करना है और कौन से पोर्ट के थ्रू पास करना है। अब वो पोर्ट अगर उसकी रिक्वेस्ट देगा तो उसके लिए वो पोर्ट ओपन कर दिया जाता है। इसलिए पैकेट जो है वो लेजिटिमेट सोर्स से आया होगा, तभी उसे पता होगा ना कि ये मैंने ये पोर्ट यूज करना है। ये एक और एक एडिशनल चेक पॉइंट हो गया इसमें। इसलिए ये पोर्ट स्कैनिंग जो कि हैकिंग टेक्निक कॉमनली यूज होती है उसको भी ये प्रिवेंट कर देता है। इसलिए जो डाटा पैकेट्स है इस तरह की फायरवॉल में वो ज्यादा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के थ्रू ही पास ऑन करते हैं। इज इट क्लियर? Those who have asked to repeat me: Kirandeep Kaur, Akshay. Okay. Then I'll move on to the third point of your stateful inspection. This type of assessment is also called dynamic packet filtering. ये हम already भी पढ़ चुके हैं, and represents a progression in how systems monitor the packets in order to prevent dangerous incoming traffic from getting through the firewall technology. क्योंकि इसमें continuously monitoring हो रही है पैकेट्स की, प्लस एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर पैकेट में को एक पोर्ट की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि मेरे को ये पोर्ट यूज़ करना है या इस पोर्ट के थ्रू पास ऑन होना है। तो ये एक तरह का एक जो डेंजरस इनकमिंग ट्रैफिक है उसको ये प्रिवेंट करता है फायरवॉल को बाईपास करके या उसके थ्रू पास ऑन होने से। सो ये एक लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि एक नॉर्मली अटैकर यूज कर सकता है, जिनके पूरी कंप्लीशन ना हो, जिसमें कि एटलीस्ट पोर्ट एड्रेस ना हो, जो कि एक फायरवॉल के थ्रू पास ऑन ही ना कर पाए। ये फायरवॉल उसकी हर एक चीज को चेक करेगा, उसके पैरामीटर्स के अगर वो क्लियर करता भी है तो अगर वो उसका पोर्ट नहीं वो डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तब भी ये फायरवॉल उसको पास ऑन नहीं करने के देगी। इसलिए ये एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप एक अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हो किसी भी अटैक से। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अबाउट इट नाउ? You can write down clear on your chat and I'll move on to the next part of it. Okay, then I'll move on further. Proxy firewalls, a very important firewall, presently commonly used firewall, और इसके बारे में आपके कॉमनली जो है वो डिटेल में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके यहाँ पे नॉर्मली डेस्कटॉप सिस्टम्स में भी प्रॉक्सी फायरवॉल कॉमनली आप इसको यूज भी करते हो। इट इज इवन कॉल्ड एज योर एप्लीकेशन लेवल गेटवे ऑल्सो, बिकॉज ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है इसलिए एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहते हैं। Proxy firewalls operate at the application layer to filter the incoming traffic between your network and the traffic source. Very important over here. जो प्रॉक्सी फायरवॉल है, एक तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है, आपने पढ़ी हुई है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, उसमें लेयर्स पढ़ी है। सो जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही है, पहला ये। सेकंड ये है कि उस लेयर के ऊपर ये जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम योर नेटवर्क एज वेल एज फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम वेयर दैट ट्रैफिक इज कमिंग, उनको ये फिल्टर आउट करती है, उनको ये चेक करती है। हैंस द नेम एप्लीकेशन लेवल गेटवे, इसीलिए इसको नाम दिया गया एप्लीकेशन लेवल गेटवे। Rather than letting the traffic connect directly, the proxy firewall first establishes a connection to the source of the traffic and inspects the incoming data packet.
अब ये नहीं करती है कि हर एक सोर्स से जो डाटा आ रहा है उसको इमीडिएटली अपने ऊपर जो है इनकमिंग आ रही है तो उसको हर एक को एक्सेप्ट करता जाए और उसको अलाउ कर दे। ये सबसे पहले क्या करती है प्रॉक्सी फायरवॉल, एक कनेक्शन बनाती है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, और ये चेक करती है सोर्स को कि उसको उसके डाटा पैकेट्स को, इनकमिंग पैकेट्स को, सोर्स को इंस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। इंस्पेक्ट करके अगर उसके फायरवॉल के अकॉर्डिंगली उसके पैरामीटर्स सारे जो है वो अप्रूव हो जाते हैं तो देन ओनली a connection is established between the source and the destination and it allows the incoming packets from source to be received by the destination। तभी ये उसको अलाउ करती है कि पैकेट्स को वो आपके रिसीव कर पाए डेस्टिनेशन पे। Is it clear? The first point is clear. Any question you can write down, or I'll move on to the second point along with it. This check is similar to the stateful inspection firewall in that इसमें अब देखो इसकी सिमिलरिटी stateful inspection के आर्किटेक्चर से है क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी दो चीजें यूज कर रहा है। Then in that it looks at both the packet and the TCP handshake protocol। इसका मतलब ये पैकेट के ऊपर भी देख रहा है और साथ में TCP handshake का प्रोटोकॉल के ऊपर भी देख रहा है। However, the proxy firewall may also perform deep layer पैकेट इंस्पेक्शन, जो कि अब देखो सिर्फ प्रॉक्सी फायरवॉल में आई है अभी तक ये टर्म। आगे हमने देखा था सरफेस लेवल इंस्पेक्शन हो रही है पिछले वाले में जो स्टार्टिंग वाले में थे। इवन योर सर्किट लेवल गेटवे में सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल की एक इंस्पेक्शन हुई थी पैकेट की। अब प्रॉक्सी फायरवॉल क्या कर रहा है, डीप लेयर पैकेट इंस्पेक्शन कर रहा है, checking the actual contents of the information packet to verify that it contains no malware। अब वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन पैकेट का सॉरी पैकेट की इंफॉर्मेशन को भी इंस्पेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मालवेयर। अगर मालवेयर नहीं है तो इसका मतलब वो उस पैकेट को अलाउ करेगा। वो क्लियरली ये चेक कर रहा है कि मालवेयर नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? If it is clear, you can write down on your this chat. Okay, then I'll move further. Now, once the check is complete, the packet is approved to connect to the destination। अब जब एक चेक कंप्लीट हो जाता है जो कि हमने पीछे परफॉर्म किया तो पैकेट को अप्रूवल मिल जाता है कि वो डेस्टिनेशन के पास भेज दिया जाता है एंड द प्रॉक्सी सेंड्स इट ऑफ, उसको भेज दिया। A proxy server is a server that sits between a client application such as web browser and a real server। अब इसमें क्लियर ये आना चाहिए, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि जो कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए वर्ड तो ये होता है प्रॉक्सी, बट ये एक तरह का एक ऐसे का सॉफ्टवेयर है, ऐसे का टूल है जो कि एक क्लाइंट एप्लीकेशन है जो कि नॉर्मली वेब ब्राउजर होता है जिसके थ्रू आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, वेबसाइट्स के थ्रू करते हो, प्लस एक्चुअल सर्वर जो है उसके बीच में ये एक प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है। Or it intercepts all the requests to the real server to see if it can fulfill the request itself। और ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती है रियल सर्वर को उन सबको इंस्पेक्ट करता है और चेक करता है कि सारी रिक्वेस्ट वो फुलफिल हो जाए। इफ नॉट इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द रियल सर्वर। अगर नहीं तो ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो रियल सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? So we'll move further also. Still, if you want any question regarding it, you can ask me. If there is one drawback to the proxy firewall, it's that they can create significant slowdown because of the extra steps in the data packets transferal process। अब क्योंकि ये हर एक डाटा पैकेट के कंटेंट को भी चेक करने जा रहा है, इसलिए ये जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है एक प्रोसेसर का, इसलिए ये जो स्लो डाउन कर रहा है अब
इसलिए एक ये मेजर ड्रॉबैक एप्लीकेशन लेवल गेट के या प्रॉक्सी फायरवॉल का है कि ये जो एक नेटवर्क ट्रैफिक के फ्लो को एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रह गए हम, इसलिए डाटा पैकेट ट्रांसफरल प्रोसेस को काफ़ी स्लो हो जाता है जो प्रॉक्सी फायरवॉल रहते हैं। बट अगर हमने सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है तो उस केस में आई थिंक सो स्लो होना सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। स्टिल समवेयर इन सम केसेस प्रॉक्सी फायरवॉल जो है एक बहुत ज़्यादा सिस्टम को स्लो कर देता है, इसलिए एक ड्रॉबैक भी है इसका। So proxy firewall is a network security system that protects the network resources by filtering the messages at the application layer. ये application layer पे ही काम कर रहा है। A proxy firewall may also be called an application firewall or gateway firewall. इसको application firewall भी कहते हैं या gateway firewall भी कह देते हैं। In addition to determining which traffic is allowed and which is denied, a proxy firewall uses stateful inspection technology and deep packet inspection to analyze the incoming traffic for signs of attack. अब इसमें क्या है, जो हमारी stateful inspection technology थी जो कि हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो उसका आर्किटेक्चर था वो तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये डीप इंस्पेक्शन भी कर रहा है, पैकेट इंस्पेक्शन भी कर रहा है, जिसमें कि पैकेट के कंटेंट्स के भी चेक कर रहा है ताकि कोई मालवेयर ना हो, और प्लस ये दोनों चीज़ों को यूज करते हुए, इस दोनों चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हुए ये चेक करता है कि इनकमिंग पैकेट के थ्रू कोई साइन तो नहीं है अटैक होने का। If there is any sign of attack, it will help you to find the solution for it, maybe deny that packet to access to your this resources. Is it clear? Proxy firewall का अगर कोई क्वेश्चन है तो लिखो, otherwise you can write down clear on your chat. Any question you can write down. Okay, then I'll move further. Next generation firewall, the last firewall. The next generation firewall is a part of the third generation of firewall technology that is implemented in either hardware or software and is capable of detecting and blocking sophisticated attacks by enforcing security policies at the application, port and protocol levels. अब ये देखो जो हमने अभी तक पढ़ी है प्रॉक्सी फायरवॉल, ये तो कॉमनली आज के टाइम पे काफ़ी यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी कई जगह पे यूज़ होती है, बिकॉज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, और इसमें हार्डवेयर का भी रोल है। कुछ एक ऐसे हार्डवेयर अवेलेबल हैं जो कि एज अ फायरवॉल एक्ट करते हैं, प्लस उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के भी एप्लीकेशन हैं, टूल्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो सोफिस्टिकेटेड अटैक हो रहा है उसके सिक्योरिटी पॉलिसीज के थ्रू, और जो कि एप्लीकेशन के ऊपर है, जो पोर्ट के थ्रू या प्रोटोकॉल लेवल के ऊपर, उन सबको रोका जा सके। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में एडिशनल इनपुट ये है कि हार्डवेयर भी एक ऐसे के हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में यूज होते हैं अटैक्स को रोकने के लिए, और इनके टिपिकल फीचर्स जो हैं, जो कि एडवांस फंक्शंस हैं, वो एप्लीकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रोटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, आइडेंटिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा यूज़र है या कौन सा ग्रुप है जो कि कंट्रोल कर रहा है, ब्रिज्ड एंड राउटेड मोड्स, ब्रिज कौन सा यूज़र है या राउटर कौन सा यूज़र है, उसके कौन कौन से मोड्स यूज़ हो रहे हैं, द एबिलिटी टू यूज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सोर्सेज, प्लस इसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का को भी या सोर्सेज को भी यूज़ कर सके। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर करती है, और इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट security features that can be installed on very critical systems. बहुत ज़्यादा जो critical systems हैं उस केस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अमनदीप अपना जो वीडियो ऑफ करो, अमनदीप सिंह वीडियो ऑफ करो अपनी। अमनदीप सिंह, ओके, आई मूव फर्दर नाउ। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल नाउ, क्योंकि हमने फायरवॉल्स पढ़ लिए हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या हमें ओवरऑल मिलते हैं। नंबर वन इज इट प्रिवेंट्स द अटैक्स ऑन योर प्राइवेट नेटवर्क बाय द अदर नेटवर्क्स आउटसाइड द वर्ल्ड। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी भी अटैक को प्रिवेंट करते हैं। Second is it allows you to define a funnel keeping aside a non-authorized user. जैसे हम funnel के थ्रू
जो है वो अपना एक बॉटल में एक चीज़ें डालते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ दिस एक फनल ऐसे की एक्ट करती है जिसके थ्रू आप नॉन ऑथराइज यूजर्स को बाहर रख सकते हो और सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को अलाउ कर सकते हो असेस के लिए. It allow monitoring the security of your network and computer when suspicious activity occurs. जब भी मॉनिटरिंग होती है आपके नेटवर्क की या कंप्यूटर की, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म करता है. जनरेट अलार्म मीन्स वो आपको सिग्नल देता है कि देर इज सम काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन. It is up to the user, it can check it. In case of critical systems, firewalls की जो अलार्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए इमीडिएटली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलार्म के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करता है कि कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है और उसको मॉनिटर करना शुरू कर देता है. अगर उसे लगता है कि वो वाकई एक सस्पिशियस एक्टिविटी है और अटैक है तो उसको वो रोकता है के लिए वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वट एवर चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन योर सॉफ्टवेयर पार्ट और ऑन योर हार्डवेयर, वो से इमीडिएटली उसे एक्ट करता है. मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द सर्विसेज यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या अदर प्रोटोकॉल. ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है जो सर्विसेज वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू या और कोई प्रोटोकॉल के थ्रू आप एक जो क्लाइंट या सर्वर के बीच में चल रही है वो उनको मॉनिटर करके उनको रिकॉर्ड करता रहता है, चेक करता रहता है. It controls the use of internet. It has to block or unblock the inappropriate or appropriate material. ये कंट्रोल आपके पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है फायरवॉल. प्लस उसमें कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट मटेरियल उसको या तो ब्लॉक करने में या कोई अप्रोप्रिएट मटेरियल उसको अनब्लॉक करने में हेल्प कर देता है फायरवॉल. So these are all your advantages of your firewall. Any problem in it? Is it clear? Any question? No, then I'll move on to the disadvantages also, because we have already studied the advantages. There are some still disadvantages of firewall, in spite of the fact that security is a major concern, and due to that we are installing or using these firewalls to protect our system. Still, there are some disadvantages that are associated with your firewalls. Even if a firewall helps in keeping the network safe from intruders, but if a firewall is not used properly, it would give a false impression to you that the network is safe. अब इसमें ये भी होता है कि अगर आपने फायरवॉल लगा रखी है और उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया तो वो आपको एक फॉल्स इंप्रेशन दे देता है कि आपका सिस्टम तो सेफ है, और आप भूल जाते हो कि आपने कोई सेटिंग्स ही नहीं कर रखी, आपने पैरामीटर्स को सेट ही नहीं किया, और वो एक चीज ऐसी रहती है जिसके कारण जो है फायरवॉल जो है एक उसकी इफेक्टिवनेस जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फायरवॉल इज दैट इट कैन नॉट प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम इनसाइड. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जिस सिस्टम पे फायरवॉल इंस्टॉल्ड है उस सिस्टम के अंदर से कोई अटैक कर रहा है, उसको मिस यूज कर रहा है, उसको ये फायरवॉल नहीं जो है वो हेल्प कर सकती है. क्योंकि फायरवॉल जो है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू या इंट्रानेट के थ्रू जो कि नेटवर्क में आपके सिस्टम्स लगे हैं उनके थ्रू जो अटैक होते हैं उनको तो वो हैंडल कर लेगी, और जो उसी सिस्टम के अंदर अटैक हो रहा है उसको यूज कर रहा है कोई, तो वो तो नहीं फायरवॉल जो है डिटेक्ट कर सकती, ना डिटेक्ट कर सकती है और ना ही उसे प्रिवेंट कर सकती है. इसलिए एक डिसएडवांटेज है इसका. दे ऑफन कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसाइड अटैक. ये ऑलरेडी बता दिया, इनसाइडर अटैक को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता. Firewall cannot protect a network or a PC from viruses, Trojan worms, spywares which spread through flash drives, disks and floppy. अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम लगता है कि हमने जो है फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए कोई वायरसेस या ट्रोजन वॉर्म्स या स्पाईवेयर जो है उनके अटैक्स नहीं हो पाएंगे. हाँ ऑफ कोर्स ये वायरसेस, ट्रोजन वॉर्म्स या स्पाईवेयर जो कि बाहर से थ्रू इंटरनेट या इंटरनेट जो अटैक होंगे उनको तो ये रोक सकता है, बट जो इंटरनली हो सकता है जो कि किसी फ्लैश ड्राइव मीन्स जो ये पेन ड्राइव के थ्रू या डिस्क ड्राइव के थ्रू या फ्लॉपी के थ्रू जो उनके थ्रू एक ये वायरसेस या ट्रोजन वॉर्म्स आएंगे उनको फायरवॉल नहीं आपको प्रिवेंट कर पाएगा. सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज इन केस ऑफ फायरवॉल. दे मे रिस्ट्रिक्ट ऑथराइज यूजर्स फ्रॉम असेसिंग वैल्यूएबल सर्विसेज. इसका एक ड्रॉबैक ये भी है, कई बार क्या होता है कि ऑथराइज यूजर को भी ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है वैल्यूएबल रिसोर्स की असेस के लिए, क्योंकि फायरवॉल होता ही ऐसा है कि अगर उसकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो फुल पैरामीटर्स को कोई भी एक ऑथराइज यूजर अगर फुलफिल नहीं कर पाता तो इवन ऑथराइज यूजर को भी वैल्यूएबल सर्विसेज से डिनाई कर देता है ये. दे डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैकडोर अटैक्स. ये हमने अटैक्स पढ़े हुए हैं, बैकडोर अटैक्स के केस में भी फायरवॉल इनफेक्टिव है. दे कैन नॉट प्रोटेक्ट द नेटवर्क इफ समवन यूजेस अ ब्रॉडबैंड मॉडेम या एक्सेस द इंटरनेट. अब
जहाँ पे ब्रॉडबैंड मॉडेम यूज़ हो रहा है या कोई इंटरनेट यूज़ हो रहा है, उस केस में भी ये इनफेक्टिव हो जाते हैं, बहुत कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये भी एक तरह का इसका ड्रॉबैक मेजर है। यहाँ तक बेटा ये फायरवॉल्स का टॉपिक अगर आपका है, मेरा कंप्लीट हो गया है। आप इसमें देखो अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फायरवॉल इट्स फाइन, अदरवाइज एज अ मूव आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। And before starting up that, what I'll do is I'll again send you a poll. Now I'm launching a poll and you attempt it within 1 minute. Okay, it has started up. You have just 1 minute to complete it. Okay, last 10 seconds, 15 seconds left, sorry. Okay, stopping it. I'm sharing the result. So types of firewall architecture, we have already discussed 5 types of firewall architecture, and 3 of them I have already included in this MCQ, and still some have written wrong. They are those people who are not listening to the lecture. So all the 3 are your firewall architectures. Now moving to the next topic, I'm stopping the sharing of this PPT. Let me again share it with the new one. Design principles of your information security. So हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, वेब सिक्योरिटी भी पढ़ लिया, डेस्कटॉप सिक्योरिटी भी पढ़ लिया, फायरवॉल्स भी पढ़ लिया, एंड वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स. सो स्टिल some of the design principles, they are also very important in case of your information security. We'll be looking at design principles and implementation of security mechanisms, and these principles draw an idea of simplicity and restriction. CR, please check whether it is audible and just convey it to me on your chat. Am I audible clearly? Okay, Akshay. Okay, Sahil, fine. Now, we'll be looking at the principle, design, and implementation of security mechanisms, and these principles are draw an idea of simplicity and restriction. अब दोनों चीज़ें हैं ये प्रिंसिपल्स में. एक तो ये ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो आइडियाज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने यूज़ करें, वो तो सिंपल भी होने चाहिए और रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्शन मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ईजीली नहीं उस डिज़ाइन को आप जो है हर कोई मतलब उसको मिसयूज कर पाए. रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए उसमें. सो दो इसके मेजर फीचर्स होने ज़रूरी हैं. सिंप्लिसिटी मेक्स द डिज़ाइन एंड मैकेनिज्म विल मेक इजी टू अंडरस्टैंड. एक तो सिंप्लिसिटी का मतलब है डिज़ाइन और उसका जो मैकेनिज्म है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए यूज़र भी और जो भी उसको डिज़ाइन कर रहा है वो भी. द एंटिटी कैन असेस ओनली द इन्फॉर्मेशन विच इट नीड्स. और जो भी एंटिटी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को असेस चाहती है वो उसको ईजिली असेस मिल जाए, ये ना हो कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो. एंटिटी कैन कम्युनिकेट विद अदर एंटिटीज ओनली व्हेन नेसेसरी. और एक एंटिटी अगर दूसरे एंटिटी से कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो कर सकती है, बट सिर्फ तब कर सकती है जब उसकी वाकई नेसेसिटी है या नीड है, एंड इन एज फ्यू एंड नैरो वेज एज पॉसिबल. और उसके कुछ एक पॉसिबल वेज होंगे
ये नहीं कि हर वक्त ही जब जरूरत हो तभी बात कर ले, छोटी सी बात हो वो भी कर ले। उसको कम्युनिकेशन करने के लिए एक तो कुछ प्रॉपर प्रोसीजर या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और प्लस जितने भी पॉसिबल वेज हैं उसके थ्रू जो उनको ऑथराइज किए गए उनके थ्रू ही वो कम्युनिकेट कर पाएगा। अदरवाइज एंटिटीज आपस में नॉर्मली हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगी कम्युनिकेशन के लिए। तो ये डिजाइन प्रिंसिपल की एक बेसिक जो आप कह सकते हो रूल होता है एक इसके लिए। डिजाइन प्रिंसिपल जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वो 8 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अब ये सारी 8 कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ना हमने। तो जो 8 प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। First one is your principle of least privileges. A subject should be given only those privileges that it needs in order to complete its task. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एंटिटी को उतने ही प्रिविलेजेस देने चाहिए जितने की उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा उसको कोई प्रिविलेज जो है वो इस होना ही नहीं चाहिए उसके पास, ताकि उसका वो मिसयूज कर ही ना पाए। सो लीस्ट प्रिविलेजेस मींस अ पर्सन, an entity should be given only those privileges for which it is intended to, जो उसको रिक्वायर्ड है, जो उसको लिए वो उसको असेस देना हुआ है, बस उतना ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देना। इसको हम पहला प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फेल सेफ डिफॉल्ट। अनलेस द सब्जेक्ट इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इट शुड बी डिनाइड टू दैट ऑब्जेक्ट। जब तक किसी भी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट, या ऐसे कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को देना है, एक ऑब्जेक्ट किसी एंटिटी को देना है, जब तक वो ऑब्जेक्ट उस एंटिटी को ना दिया जाए तब तक उसका डिनाइड ही रहे। मीन्स वो ऑब्जेक्ट का की अवेलेबिलिटी ना हो उसको। इसका मतलब ये है कि वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट आया, इसको इसी एंटिटी का पार्ट है इसलिए उसको सीधा दे ही दो। जब तक उस ऑब्जेक्ट का असेस ना दिया जाए उस एंटिटी को तब तक उसको दिया ना जाए, उसको डिनाइड ही रखा जाए। इसको हम कहते हैं फेसेस डिफॉल्ट। मींस डिफॉल्ट उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। बेटा जस्ट वेट। ओके आई विल स्टार्ट अगेन। प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट मींस डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती हैं या डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट जब भी आए वो इस एंटिटी का पार्ट है इसलिए उसको सीधा उस एंटिटी को दे दिया जाए, उस सब्जेक्ट को दे दिया जाए, वो डिनाई कर दो। उसको डायरेक्टली उसका असेस नहीं होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट सीधा ही उसका पार्ट बन जाए। उसको तब तक रोक के रखो जब तक उसको एक्चुअल में प्रिविलेज ना दिया जाए, इसको चेक ना किया जाए, और तब उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हैंड ओवर किया जाए या एंटिटी को हैंड ओवर किया जाए। एंड दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट, कि हमने डिफॉल्ट जो है उनको अलाउ नहीं किया है। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। आपने अभी पढ़े हैं सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो कि अभी फायरवॉल के केस में भी आ रहे हैं। आपने देखा है जैसे जैसे फायरवॉल की जो क्वालिटी बढ़ती जा रही है उसी तरह उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और उसका जो सिंप्लिसिटी पार्ट जो कम होता जा रहा है और कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सो जो इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म ये कहता है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म सिंपल होना चाहिए बट सिक्योरिटी हाई प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म कहता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद सिंपल मेथड्स, दैट इज, ताकि उसमें ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटी ना हो, और बट वो सिक्योरिटी हर तरह की प्रोवाइड करता रहे। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट मीडिएशन। ऑल accesses to objects being checked टू इंश्योर दैट दे आर अलाउड। जितने भी असेस हैं, चाहे वो असेस ऑलरेडी हमने दे रखे हैं, तब भी उनको चेक किया जाए और तभी उनको अलाउ किया जाए। ये नहीं है कि अगर असेस दे दिया है तो सीधा ही अलाउ करते जाओ, बस सिंपल। तो जितने भी असेस हैं उनको कंटिन्यूसली चेक रखो, मॉनिटर करो, और दैट मीन्स कंप्लीट मीडिएशन मीन्स मीडिएटर होना चाहिए उनके बीच में, हर बारी उसको चेक करना चाहिए, और वो चेक होने के बाद ही उनको अलाउ करते जाओ। ये नहीं है कि अलाउ कर दिए वंस और उसको सभी को अलाउ ही करते जाओ। So these are the first four principles. Any question regarding it then tell me, because हमने इसको डिटेल में भी पढ़ना है अभी, एक एक प्रिंसिपल को we'll go into details of it. This is just the introductory part of the principles. Just check if there is any question regarding the first four.
it is clear, you can write down on your chat. Any one of you can write. Okay, then I'll move on to the next principle. Principle of open design. The security of a mechanism should not depend on the secrecy of its design or implementation. Principle of open design. आप देखो इसका टर्म क्या कह रही है. जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो डिज़ाइन की सीक्रेसी है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसी को ओपन कर दे, या उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने लगाए हैं वो एक कई बार क्या होता है किसी डिज़ाइन की कुछ एक ऐसा सीक्रेट पार्ट होता है जिसके कारण वो डिज़ाइन बहुत अच्छे से चलता है, और आपका जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो उस पर्टिकुलर सीक्रेसी ऑफ डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट अगर कर दिया तो वो भी गलत हो जाता है. सो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक इंडिविजुअल एंटिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअली वो अपना काम करनी चाहिए, और वो किसी भी टाइम पे एक जो डिज़ाइन की जो सीक्रेसी है या कोई इम्प्लीमेंटेशन की सीक्रेसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. दैट मीन डिज़ाइन ओपन है, उसमें कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड कर रहा है. सो ये एक अलग से एक प्रिंसिपल कहता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस. प्रिविलेजेस को सेपरेट कर दिया जाए. अ सिस्टम शुड नॉट ग्रांट परमिशंस बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन. अब प्रिविलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई एक प्रिविलेज उसको दे दिया, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई सेकंड प्रिविलेज उसे दे दिया. सो इसका पर्पस ये है कि जो प्रिविलेजेस हैं वो सिंपली ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमीडिएटली एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो परमिशन दे दो उसको. सो इट शुड हैव अ मैकेनिज्म ऑफ you can say a combination of sub conditions that if they are satisfied only then you can grant the permissions for your particular privilege. उसमें भी कुछ एक multiple कह लो conditions होनी चाहिए, maybe more than one, two, three, four, five, any number of them, but it should not be a single condition only. There are some privileges that require only a single condition, of course, but sometimes the privileges they require more than one condition to be satisfied. Only then the permissions are being granted. So ये भी यही कहता है ये प्रिंसिपल कि privileges को सेपरेट कर दिया जाए. हर एक के ऊपर बेस ये नहीं होना चाहिए कि सिंगल कंडीशन पे ही एक प्रिविलेज जो है वो असेस मिल जाए, उसके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस हो तो दैट इज बेटर. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ योर लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म. द मैकेनिज्म यूज्ड टू असेस द रिसोर्सेज शुड नॉट बी शेयर्ड. जितने भी मैकेनिज्म आप रिसोर्सेज को असेस करने के लिए यूज करते हो वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए. वो सिर्फ उन लोगों को पता होना चाहिए जो कि उसके ऑथराइज यूजर हैं या लेजिटिमेट यूजर हैं. इसलिए ये लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म कहता है कि ये सिर्फ उन लोगों को, मिनिमम लोगों को पता होना चाहिए जो एक्चुअल में उसको यूज करें, और बाकी सबके लिए वो जो है डिनाइड होना चाहिए. रिसोर्सेज का जो मैकेनिज्म जो यूज किया जाता है उनको डिनाइड होना चाहिए. Then another principle is principle of psychological acceptability. The security mechanism should not make the resource more difficult to assess than if the security mechanisms were not present. ये भी important है. Psychological acceptability is कि security mechanism should not make the resource more difficult. कि एक तो जो resource है उसको ज़्यादा difficult ना हो जाए उसका assess, और सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कि present है और ये अपना काम कर रहा है. इसका मतलब ये है कि वो सिंपल होगा तभी उसको इजीली कर सकते हैं. अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म ही बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया रिसोर्स के ऊपर और रिसोर्स को जो है ओवर पावर कर रहा है, मीन्स रिसोर्स छोटी सी है और सिक्योरिटी मैकेनिज्म इतना ज़्यादा है कि उसके कारण जो है वो रिसोर्स का असेस जो है कॉमनली मिल ही नहीं पा रहा, तो तब भी एक जो एक प्रिंसिपल कहता है कि साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनेगी उस रिसोर्स को यूज़ करने की. सो दैट इज अगेन योर दिस कॉल्ड एज योर. अब आपके पास कई बार क्या होता है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं वो कि बिफोर असेसिंग यू स्टार्ट गिविंग अस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यू. तो आपके पास टाइम कम होता है तो यू स्टार्ट गेट इरिटेटेड कि यार इतना कुछ मांगने की जरूरत क्या है, मैंने तो एक चीज़ ये देखनी है. सो वो इसका मतलब हो गया कि उनका सिक्योरिटी मैकेनिज्म इतना ज़्यादा है कि उनकी रिसोर्स को असेस करना जो है वो ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो आप क्या करते हो, यू स्टॉप यूजिंग दैट वेबसाइट और दैट रिसोर्स इमीडिएटली, उसका असेस को छोड़ देते हो और कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लेते हो. सो दैट इज योर साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल है. So these are your introductory part of your design principles. I'll not go into details of it today, and I'll take up these principles one by one next time. We'll go into the details of it, and I'll share all these 3 PPTs with you today only. And best of luck for your this MSTs which are starting from tomorrow onwards. And adhere to the जो आपके rules regulations हम आपके साथ share करेंगे,
और जो आपके इवन योर डेट शीट के नीचे लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, एंड मेक इट श्योर कि आपके जो पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हो, टाइम कंस्ट्रेंट प्रॉपर हो, और जो जो चीज़ें उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन सबको फॉलो करो। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करोगे तो यू नो इट कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर मार्क्स, और उसमें मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। तो इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, अपनी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग any of the topic discussed today? You can even raise your hands, those who want to talk to me. I'll allow him or her to unmute. Any questions? Anyone? Okay, then I'll be stopping my lecture today. So if there is no question,